नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। औराद में मंत्री आर अशोक का भव्य स्वागत। वडगांव में मुकाम करने के बाद मंत्री आर अशोक ने पत्रकारों से बात की। कर्नाटक ने दावोस में 60 से 65 हजार करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया, सीएम। कर्नाटक ने ठेका कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को ठुकराया। कुमारस्वामी का कहना है कि पीएम मोदी का मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। पीएम मोदी ने कहा, सेवा के काम में लगी है हमारी सरकार, गरीबों के लिए चला रही कई योजनाएं। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का बड़ा जलसा, ज्ञानवापी, मथुरा समेत 3 प्रस्तावों पर चर्चा। मदनी ने कहा, आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं। स्थानीय समाचारों से। राजस्व मंत्री आर अशोक का औराद में भव्य स्वागत किया गया। जिलाधिकारी नड्डेहल्ली कड्डे कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए विशाल मंच आदि स्थापित किया गया, जहां मंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इससे पहले आर अशोक को बाजे गाजे और नृत्य जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद आर अशोक और प्रभु चौहान ने संबोधन किया। इस अवसर पर विधायक शरणु सलगार सहित भाजपा के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता, साहित्य, जिला प्रशासनिक अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಬರೋದು ಅರ್ಜಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಹೋಟೆಲ್ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಜಾಗರಣೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬಡವರು, ರೈತರು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ. ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನನಗೂ ಇದೊಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ. ಕಲಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನೇನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ. ಈ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂದಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಂದಾಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಜನ ಅಲೆದಾಟವಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಾಟವಿಲ್ಲ, ಬಂದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ನಾಳೆ ದಲಿತರ ಕೇಳಿಗೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ತಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ತಿಂಡಿಯನ್ನೇ ತಗೋತೀನಿ. ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣ, ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವರ ಅಹವಾಲು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತ ಈ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 7ನೇ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 8ನೇ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನ, ಸುಮಾರು 4-5 ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ದಲಿತರ ಜಮೀನುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಲಿತರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನುಗಳು ಕಳೆದ 40-50 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅವ್ರ ಜಮೀನು ಎಡಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣವರು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ನಾಡ ಈ ಬಸವಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 3ನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ 610 ಕೋಟಿ 610 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೋಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರ. ಬಹಳ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಾರ, ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಾರ. ಅನುಭವ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ योजना ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಟೂರಿಸಂ इधर इंग्लैंड को देखने को आएंगे, अमेरिका को देखने को आएंगे, क्योंकि बसव कल्याण में पहला पार्लियामेंट में
इस कार्य में करने वाले हमारे महात्मा बसवराज बंधु है और ये 610 कोटि का काम चल रहा है। पूरा देश या देखने को आएगा, पूरा नगरों में देखने को आएगा, बस कल्याण में देखने को आएगा। इनका विनाश का होगा, इनका विनाश का सूर्य बढ़ेगा, जो सूर्य बढ़ेगा हमारे गुजर के भाइयों के हाथ को काम मिलेगा, सोना को काम मिलेगा। हमारे भाई इलाहाबाद मिल जाएंगे, हमारे तरुण बंगाल मिल जाएंगे, हमारे तरुण सोना मिल जाएंगे। और तुम इतना बड़ा भोजन मिलेगा, इधर मिलेगा, सब लोगों को हाथ को काम मिलेगा। मेरे भाइयों और ईमान का पूरा पूरा बड़ा बीटर एयरपोर्ट ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ ಫೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಮಾನ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋರಾಟ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾಗಿ ವಾಪಸ್ औरा के वडगांव में जिलाधिकारी नड्डे हल्ली कड्डे कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद वह ग्राम में मुकाम किए और इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बात करके कहा कि इस कार्यक्रम से आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में बदलाव आदि को स्थल पर ही किए जाने की जानकारी दी। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान, भाजपा नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली और जिलाधिकारी गोविंदा रेड्डी उपस्थित थे। और आज से आमिल पाशा का कवरेज। जोड़ने ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಹವಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೇ ಬರ್ದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಅರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿನೂತನ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನೇನು ಹೊಸದಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುತೀನಿ. ದಿನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 200 ಕಡೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 200 ಕಡೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 200 ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ 200 ಕಡೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಕಂದಾಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಯಾಕೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹವಾಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ವೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ, ಕಡತಗಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬಂದಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು, ಬಡವರು, ಅವರ ಅಹವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ DC ಅವರು. ಇದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಾನೇ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में 60,000 से 65,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है। बोम्मई ने अपनी 4 दिवसीय दावोस यात्रा से लौटने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 20 से अधिक कंपनियां हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में निवेश करेंगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों के अलावा कई अन्य कंपनियों ने रुचि दिखाई है और कर्नाटक में निवेश का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार ने गुत्ते के आधार पर काम पर रखे गए ग्रुप B, C और D कर्मचारियों के अवशोषण के लिए कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हाल ही में विश्वविद्यालय ने ग्रुप B, C और D पदों को समाहित करने के लिए KSOU स्पेशल स्टैट्यूट 2022 को मंजूरी देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा था। ये कर्मचारी अपग्रेड पे पर हैं और अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए हैं। हालांकि उच्च शिक्षा ने इसे ठुकरा दिया है। 10 अप्रैल
अप्रैल 2006 को एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने KSOU को आवेदनों को बुलाकर और सभी रोस्टर और आरक्षण का पालन करके पदों को भरने के लिए सूचित किया है। जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने कहा कि परिवार संचालित पार्टियों की आलोचना करना सिर्फ एक बहाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय राजनीति दलों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। पूर्व मुख्यमंत्री गुरुवार को हैदराबाद में परिवार द्वारा संचालित राजनीतिक दलों पर मोदी की आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवारवाद देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है कि टिप्पणियां तब आई हैं जब तीसरे मोर्चे को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कोई भाजपा या कांग्रेस नहीं है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को यहां पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और कुमारस्वामी से मुलाकात की है। कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने सुझाव दिया कि स्कूली पाठ्य पुस्तकों में पाठ को लेकर चल रहे विवाद के बीच भाजपा के वैचारिक को बदनाम करने के प्रयास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक मूल भारतीय नहीं थे। सिद्धरामैया के इस सुझाव से RSS आर्य जाति से संबंधित है। यह RSS क्या वे मूल भारतीय हैं? हम चुप हैं क्योंकि हम कुछ चीजों को उठाना नहीं चाहते थे। क्या आर्य इसी देश के हैं? क्या RSS द्रविड़ हैं? हमें जड़ों तक जाना चाहिए। सिद्धरामैया ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाने के लिए एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान कहा। कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के कक्षाओं में ड्रेस पहनने को लेकर दिए आदेश के बावजूद मंगलौर यूनिवर्सिटी में छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आने को लेकर अड़ी हैं। शनिवार को भी वे हिजाब पहनते हुए कॉलेज पहुंची, लेकिन जब उन्हें कक्षा में घुसने के लिए हिजाब उतारने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद वे वापस लौट गयी। इससे पहले हिजाब न पहनने को लेकर गुरुवार के दिन भी कुछ छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस बवाल के बीच प्रदेश के CM बसवराज बोम्मई और शिक्षा मंत्री BC नागेश का कहना है कि अदालत इस मामले से पहले ही फैसला चुना चुकी है। कक्षाओं में सिर्फ ड्रेस पहनने की ही अनुमति होगी। अब समय है ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 040245658786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान राजकोट में आयोजित सभा को उन्होंने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि यहाँ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हुआ। इससे सौराष्ट्र में चिकित्सा सुविधाएं और बेहतर होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में गरीबों के लिए अन्न के भंडार खोले गए, जनधन खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे गए, हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि सुविधाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना हमारी कोशिश रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शनिवार को गुजरात दौरे पर हैं और राज्य के अनेक हिस्सों में सार्वजनिक समारोहों में भाग लेने का कार्यक्रम है। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने को है। इसके मद्देनजर पीएम मोदी हाल के समय में कई बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। मोदी ने राजकोट जिले की जसदण तहसील में अटकोट गांव में पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित एक अस्पताल का उद्घाटन किया। काशी और मथुरा में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे विवादों के बीच आज देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद का एक बड़ा जलसा हो रहा है। जलसे में देश भर से करीब 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए हैं। जमीयत की यह सम्मेलन 2 दिन 28 और 29 मई को चलेगी। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू पक्ष के नए दावों और कोर्ट में सुनवाई के बीच हो रहे इस सम्मेलन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन में कुल 3 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इस बीच जलसे को संबोधित करते हुए महमूद मदनी ने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। आपको बता दें कि इससे पहले भी जमीयत उलेमाए हिंद ने मुस्लिम समुदाय के लोगों का आह्वान किया था कि ज्ञानवापी जैसे मुद्दों को सड़क पर न लाया जाए और सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचा जाए। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान में कहा था कि कुछ शरारती लोग इस मामले के बहाने 2 समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश में है, इसलिए इसमें संयम जरूरी है। मदनी ने आह्वान किया कि ज्ञानवापी जैसे मुद्दों को सड़क पर न लाया जाए और सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचा जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में 424 लोगों को दी गई सुरक्षा वापस ले ली है। जिन लोगों की सुरक्षा हटाई गई है उनमें कई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, धर्मगुरु और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। इससे पहले अप्रैल में पंजाब सरकार ने पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं सहित 184 लोगों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवारे की पत्नी के परिवार की सुरक्षा पिछले महीने वापस ले ली गई है। सुरक्षा को वापस लिए जाने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस पहले से ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की कमी को पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
जनपद संभल के ग्राम गड़ा में आंगनवाड़ी कर रहे घोटाला, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि 40% गलत पत्तियों को चौथे महीने में रिफाइंड डाल देते हैं, 30% 3 साल से छोटे छोटे बच्चों को रिफाइंड डाल देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के नियम के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र बाले पुष्टाहार नहीं दिया जा रहा है। संभल से रजा हुसैन का कवरेज। क्या नाम है? कहाँ की रहने वाले हो? ये राशन मिला, क्या क्या मिल रहा है इसमें? दाल, चावल, दलिया। और बालक कितना उम्र का है? 3 साल का। क्या क्या मिला है इसमें? दाल, चावल, दलिया। और रिफंड नहीं मिली? कभी नहीं मिली। आपको बता दें कि बीते दिनों जनपद मुरादाबाद के थाना पाक बड़ा क्षेत्र में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ लूट की घटना घटी थी। घटना बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा की गई थी। दोनों बदमाश ने सिक्योरिटी गार्ड से सोने की चेन, सोने की अंगूठी, मोबाइल व अन्य सामान लूट लिया था और उसके साथ जमकर मारपीट की थी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौके पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। वहीं इस मामले में थाना 5वां पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मुखबिर की सूचना पर पाक बड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर के जंगल में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश को हिरासत में लेते हुए उपचार के लिए सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल भेज दिया। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। 22 मई को पाक थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी। गुरवेंद्र नाम का व्यक्ति जो यहाँ का रहने वाला है, अपनी फैक्ट्री जो वहाँ से रात को लौट रहा था 10 बजे के बाद, 2 बदमाशों ने उसका बाइक से पीछा किया था और उस पर हमला करके उससे सोने का कड़ा और उसकी अंगूठी, उसका मोबाइल और अन्य सामान जो उससे लूट के ले गए थे। इस घटना पर थाना पाकवाड़ा पुलिस ने तेजी से काम किया और कल इस घटना का उनके द्वारा अनावरण किया गया था और इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अंकित है, उसको गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ से पता चला कि अंकित किसी गुरवेंद्र नाम के व्यक्ति जिसके संग ये लूट की घटना हुई थी, उसके साथ ही फैक्ट्री में काम करता था और इसको जानकारी थी कि इसके पास जो कड़ा है वो सोने का है। इसने इसकी घटना के लिए इसकी रेकी की थी और इसका पीछा करके अपना एक अन्य साथी जो इसी के गाँव का हुसैनपुर कुदरती क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम अशोक है, दोनों लोगों ने मिलकर ये घटना कायम की थी और मारपीट करके उससे लूटपाट करके लोग भाग गए थे। थाना पाकवाड़ा पुलिस ने इस पर कार्रवाई की थी और सफलता मिली। जब अंकित से पूछताछ के दौरान दूसरे रुख का नाम पता चला तो उसकी तलाश में जब हमारी पुलिस रात को सक्रिय थी, कहीं पर सूचना मिली थी कि ये बदमाश वहां से फरार होने की फिराक में है, तो पुलिस ने जब दबिश दी तो इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में ये बदमाश इंजर्ड हुआ, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है और इसको तत्काल ही जिला अस्पताल के लिए भेजा गया था। हमारा भी एक कांस्टेबल इस मुठभेड़ के दौरान गिरने से घायल हुआ था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। समांथा को कमेंट करते हुए कहा, तो बिल्लियों के साथ अकेले मरेगी। मिला ऐसा जवाब, हुई बोलती बंद। अब समाचार खेल के। जॉस बटलर ने जड़ा आईपीएल 2022 में चौथा शतक, विराट कोहली के रिकॉर्ड को खतरा। अंत में समाचार बाजार के। वेज और नॉन वेज केक या पेस्ट्री खाने से पहले जरूर कर ले पड़ताल। FSSAI ने बताए शाकाहारी या मांसाहारी के नियम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। औराद में मंत्री आर अशोक का भव्य स्वागत। वडगांव में मुकाम करने के बाद मंत्री आर अशोक ने पत्रकारों से बात की। कर्नाटक ने दावोस में 60 से 65 हजार करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया, सीएम। कर्नाटक ने ठेका कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को ठुकराया। कुमारस्वामी का कहना है कि पीएम मोदी का मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। पीएम मोदी ने कहा, सेवा के काम में लगी है हमारी सरकार, गरीबों के लिए चला रही कई योजनाएं। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का बड़ा जलसा, ज्ञानवापी, मथुरा समेत 3 प्रस्तावों पर चर्चा। मदनी ने कहा, आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता। टीपी न्यूज के 9 बजे की बुलेटिन में अब तक इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।